मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा था, फॉर एग्जांपल डिमांड नंबर 4 में आप कह दें कि दे आर 438 कट मोशंस और जितने मेंबर्स के जितने कट मोशंस है वो बता दें, इसमें लिखा हुआ है सारा, एंड वो सारे आप पेश कर दें मेंबरान की तरफ से, मैं उनको अपोज कर लूँगा जो है और फिर आप वोट करा लें। और अगली जो बाकी डिमांड्स हैं, डिमांड 5 से लेके डिमांड आई बिलीव 158 तक है जितनी है, वो सारी के सारी एक साथ पेश करें और उनमें सारे के सारे कट मोशंस आप एक साथ पेश करें, वो सब पेश हो जाएंगे, असेंबली के रिकॉर्ड पे आ जाएंगे, वोट हो जाएगा उन पे एक साथ में और फिर हम डिमांड सारों को कर देंगे। समझ आई? हाँ। Now, demand number 4, Mr. Muzair Amir, 23 cut motions, Mr. Danial, 23, Bilkis Mukhtar Sahiba, 24, Ijazul Haq, 23, Abdul Wasim, MPA, 23, Fawzia Hamid, 24, Farhan Ansari, 21, Mr. Fahim Ahmed, 23, Adil Askari, 14, Qurratullain Khan, 23, Ms. Kiran Masood, 17, Rehan Akram, MPA, 22, Najam Mirza, 23, Faraz Suhail, MPA 22, Sharik Jamal 23, Mr. Mahesh Kumar Hasija 23, Mr. Mohammad Rashid MPA 4, Mr. Mohammad Maaz Mehboob 25, Mr. Mohammad Dilawar 24, Mr. Jamal Ahmed 15, Abdul Basit 8, Sikandar Khatun 8 and Mr. Sabir Qaim Khani Saab 3. The cut motions. You oppose all the cut motions. Now I put all the cut motions to the House. Those who are for the cut motions may say ayes. Aye. Those who are against it may say no. No! The noes have it, the noes have it, and the cut motion stand rejected. The demand is that sum not exceeding rupees 21,370,296,000 be granted to the government to meet other expenditure for the financial years ending on 30th June 2025 in respect of head of account SC 2110 for Services General Administration and Coordination Department. Now I put the demand 4 to the House. Those who are for the demand may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. No. The ayes have it, and the demand is granted. Sir, जैसे इधर डिसाइड हुआ इजाज़त है तो मैं डिमांड नंबर 4 से डिमांड 158 एक साथ पढ़ दूं और आप डिमांड के बाद जो कट मोशंस हैं, ऑल द कट मोशंस आप क्लब करके एक साथ मेंबर्स के वर्ड पढ़ते उसको वोट कर लें और फिर डिमांड को वोट कर लें। ठीक है सर, आई मूव दैट सम्स मेंशन्ड अगेंस्ट डिमांड्स नंबर 5 to demand number 158 be granted to the government to meet other expenditure for the financial year ending 30th of June 2025 in respect of heads of account mentioned therein. The motion is that the cut motions from demand 5 to 158 be clubbed together. To be clubbed together for this financial year. Now I put all the cut motions to Sir, I oppose all the cut motions. Let me put it first, sir. Now I put the cut motions to the House. Those who are for the cut motions may say ayes. Those who are against it may say no. No. The noes have it, and the cut motions are rejected. Now demand, sir. Sir, demand मैंने पढ़ दिया, आप पढ़ दें. Demand 5 to 158. The motion is that some mentioned against demand 5 to demand 158 be granted to the government to meet other expenditures for the financial year ending on 30th June 2025 in respect of head of accounts mentioned therein. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the demands are granted.
साइन करी छॾिया न फाइनेंस बिल हाणे थींदो अञा बाबा साइन तो करे बैठे ना साइन तो करे बैठे हाँ ना Now laying before the Assembly the schedule of authorized expenditure for the year 2024-25. Honorable Chief Minister Sindh, please. Sir, I rise to lay before the Assembly the schedule of authorized expenditure for the financial year 2024-25. The schedule is laid. No, Now consideration of Government Bill number 5 of 2024, a bill to rationalize, levy and enhance certain taxes and duties in province of Sindh and to amend certain laws in the province of Sindh. Honorable Chief Minister, may please move the motion. Sir, I rise to move the motion that the Government Bill number 5 of 2024, a bill to rationalize, levy and enhance certain taxes and duties in the province of Sindh and to amend certain laws in the province of Sindh be taken into consideration by the Assembly. The motion is that the Government Bill number 5 of 2024. माइक खोल दें। जबानबंदी शुरू से हो रही है इधर। स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है, ये सरकारी बिल आया है, बिल नंबर 5 सिंध फाइनेंस बिल 2024। इस पे तमामी मेंबरान ने अपोजिशन की साइड से जो है अपनी रिजर्वेशंस शो की थी। हमारी गुजारिश ये है कि इस बिल को जो है, पहली बात तो ये उसूली तौर पे इस बिल के अगेंस्ट है क्योंकि ऑलरेडी एक अपने टैक्स नेट को आपने बढ़ाया नहीं है और जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे थे लोग उनके ऊपर दोबारा टैक्सेशन कर दी गई है। तो इसको इतनी उजलत में ना किया जाए, इसके ऊपर एक कमेटी फॉर्मेशन हो जाए। हमारी भी गुजारिशात आ जाएंगी, वो भी सामने रख दी जाएँ। अगर आपकी जायज़ मुतालबात होंगे इसमें कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उसमें उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, तो उस पर हमारी तरफ से भी इनपुट आ जाएगा। के लिए आपके पास टाइम था, क्या आपने अमेंडमेंट ड्यूरिंग द टाइम जमा की? साहब, आप अब मेरी गुजारिश है, अगर अमेंडमेंट हमारे पास मौजूद है, अगर इसको ये उजलत में करने की जरूरत क्या है? ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन साहब, आप सीनियर हैं, आपको पता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स में एक चीज लिखी हुई है, आपके पास टाइम 2 दिन पहले खत्म हो चुका है। अगर आप कहें तो मैं रूल कोड कर दूं। एक अच्छे माहौल में तमाम बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए था, आपको ये देखना चाहिए था कि आपके पास टाइम गिवन है, आप उसमें अमेंडमेंट दे सकते थे। स्पीकर साहब, इसमें तमाम चीजें देखें, सिंध फाइनेंस बिल पे ये पॉसिबल नहीं है, हो जाएगी ना। रूल्स एंड प्रोसीजर्स को अगर हम छोड़ देंगे तो ये हाउस कैसे चलेगा? मुझे इसका आप जवाब दे दें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें उजलत क्यों हो रही है हुकूमत की? कोई उजलत नहीं है। एक जी कोई नहीं हो रही है। कब मैंने बजट पेश किया था मुझे डेट अब याद नहीं है, 13 थी मेरे ख्याल है, 14 जून 14 जून को मैंने किया था, तो आज है 28 जून, 14 दिन हो गए। 14 दिन के अंदर जो अमेंडमेंट्स वगैरह पेश करनी थी, कुछ हमने अमेंडमेंट्स पेश किए जो आई हैं आपके पास और हम आज उनको गो थ्रू करेंगे। सेकेंडली, अगेन मैं सबको कहता हूँ, कल भी मैंने बताया था कि ये किताब देख लिया करें, इसमें नहीं मैं बता देता हूँ, कोई रिवायत नहीं है, ऐसी कभी रिवायत नहीं हुई। मैं बता दूँ अगर इजाज़त दें। सर, ये रूल 99 है, upon introduction, a bill other than a finance bill should be referred by the speaker to the appropriate standing committee. ये फाइनेंस बिल तो कमेटी को जाता ही नहीं है, ये कानून है। तो उन्होंने कह दिया कमेटी, रिवायत मुझे नहीं याद है, मुझे भी काफ़ी साल हो गए इधर के कभी फाइनेंस बिल किसी कमेटी को गया हो, तो ये होता नहीं है, इसलिए कि रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देता। और उजलत बिल्कुल नहीं है। 14 दिन
दिए गए थे और रूल्स में है कि 2 दिन पहले, मेरा ख्याल है, if I remember correctly, 2 दिन पहले अमेंडमेंट, रूल और उसी दिन 110 रूल 110 उसी दिन मैंने कहा था, मोशन मूव किया था कि इसको 28 को कंसिडरेशन में लाया जाए और असेंबली ने अप्रूव किया था। तो 25 या 26 तक अगर कोई अमेंडमेंट्स आ जाती तो वो कंसिडर हो जाती। हमने जो अमेंडमेंट्स थी वो डाल दी थी, वो कंसिडर हो जाएंगी। हमने कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज की हैं और बाकी मैं 1-2 चीज़ें और बता दूं कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था बड़ी क्लियरली कि हम 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, टैक्स रेट जो है, अब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस में पहले आता है, सर्विस सेल्स टैक्स है, उसको 13 से 15% इसलिए किया है कि हमें बाकी तीनों सूबों से और फेडरल गवर्नमेंट से और IMF से, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी हार्मोनाइजेशन हो टैक्सेस की, तो उन्होंने कहा कि जी आप बराबर करें। हमने बड़ी मिन्नतें की बाकी सूबों से कि आप कम कर लें, वो कम करने के लिए तैयार नहीं थे। इस वक्त भी एक सूबा गालिबन हमसे ज़्यादा है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 15% के बावजूद। इस वजह से वो इंक्रीज़ किया। ऑब्वियसली हमारी जो है रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होंगे इससे। सेकेंडली, हम टैक्स नेट में नए लोग ला रहे हैं। टैक्स नेट में जो हमने कुछ चीज़ें एग्जेम्पशंस थी पहले, वो ख़त्म की है। फिर मैं क्लियर कर दूं कि एजुकेशन और हेल्थ, मैंने बड़ा साफ बताया था, जैसे ये बिल पास होगा, आज एक नोटिफिकेशन आज या कल तक निकल जाएगा, यानी 1 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि एजुकेशन के अंदर हर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो 5 लाख रुपए साल से ज़्यादा फ़ी लेता है, यानी महीने में तकरीबन 41,667 बनते हैं, उससे अगर ज़्यादा बिल है, फ़ी है सॉरी, तो वो 3%, 15% नहीं, 3% चार्ज करेगा। और हमने उसमें कैबिनेट ने कंडीशन डाली है कि इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाएगा ताकि वो बाकी लोगों के लिए सहूलियात मुयस्सर कर सके। तो ये तो एक, मेरा ख्याल है, अपोजिशन को मान जानी चाहिए कि बड़ी अच्छी एक तजवीज़ है। फिर आप आ जाए हेल्थ के अंदर, जिसमें मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, इससे एक फ़ायदा भी हो सकता है कि अगर आज किसी स्कूल की फ़ी 45,000 है तो शायद वो ये 42,000 से कम कर दे, इसलिए कि वो टैक्स नेट में आना नहीं चाहता कोई। टैक्स नेट में इंडिविजुअल नहीं, वो स्कूल आ जाता है, वो स्कूल कलेक्ट करेगा ज़रूर उनके वालिदैन से, लेकिन हम उन वालिदैन की बात कर रहे हैं जो 42,000 रुपये महीना बच्चे की फ़ी दे सकते हैं, उसमें 3%। अब अस्पतालों पे आ जाएं, अस्पतालों में किसी और सर्विस पे नहीं, 2 चीज़ों पे। एक, अगर अस्पताल के रूम की चार्ज 25,000 रुपये से ज़्यादा है, उसमें दवाइयाँ वगैरह शामिल नहीं है, रूम की चार्ज 25,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो 3% देगा। उसके अलावा अगर कंसल्टेशन कोई डॉक्टर करते हैं और वो 3,000 रुपये चार्ज करते हैं तो वो भी 3% लेगा। ये सिर्फ उन प्रोफेशनल्स को टैक्स नेट में लाना है ताकि पता चले कि उनकी इनकम कैसी है, फिर उससे बाकी चीज़ें भी होंगी सही। तो अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ रेवेन्यू साइड पे, कहीं स्टैम्प्स पे, कहीं छोटी मोटी जगहों पे पैसे इंक्रीज़ किए, और ये वो इंक्रीज़ हैं जो 10-10, 15-15 साल से नहीं हुई है, उनको भी हमने चेंज किया है। अगेन आपको आगे देखना पड़ेगा, अगर एक चीज़ आज से 20 साल पहले 100 रुपये थी, कोई टैक्स किसी चीज़ पे, कोई स्टैम्प का, और उसको अगर 500 कर दिया है 20 साल बाद, 24 साल बाद, तो ये कोई इतनी जायज़ बात नहीं। हमने अपने रेवेन्यू ज़रूर बढ़ाने। आप खुद कहते हैं कि जी आपके रेवेन्यूज़ कम है, रेवेन्यूज़ बढ़ाए। रेहान साहब ने तो हमें दे दिया था, और वो बैठे चेयरमैन एसआर भी बड़े परेशान हो गए थे कि मैंने उनको 1200 अरब का दे दिया था टारगेट इस पे। तो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि वो क्यों नहीं 1200 कर सके हम, नहीं तो वैसे उनको मैंने दे दिया कि 2-4 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर, तो वो हमने टैक्स बढ़ाने के लिए ना, और हमने किए। इसके साथ साथ मैंने कल भी बताया था आपको, हम खुद मान रहे हैं कि हमारी टैक्स कलेक्शन कुछ एरियाज़ में वीक है, और उसको हमने इन्हेंस करने के लिए टारगेट्स बढ़ाए हैं। उस वजह से भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं। बाकी अमेंडमेंट्स काफ़ी सारी ऐसी हैं जो सिर्फ उससे कोई टैक्स वैक्स नहीं बढ़ रहा, जो हमें वसूल करने में दुश्वारियाँ पेश आती हैं। कहीं कहीं लोग जाके कोर्ट्स में स्टेज ले लेते हैं कानून के 2-4 लफ्ज़ों की हेर फेर की वजह से, उनको हमने एड्रेस किया है। तो सिर्फ ये चीज़ें हैं फाइनेंस बिल में, और मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा मेंबरान से कि ये एक
गुड फेथ में इस सूबे की लोगों की खिदमत करने के लिए हम अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं ताकि हुकूमत के पास वो अंग्रेजी में कहते हैं मनी मेक्स द मेयर गो, वो हुकूमत चलती पैसे से है और हम अगर अपनी रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ा सके तो उस तरीके से लोगों को रिलीफ या लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये बड़ी गुड फेथ में हमने जो ये इंक्रीजेस किए हैं अजान की आगे उनको मंजूर किया जाए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, अजान ने गवाही दे दी। टू एज अमेंडेड do stand part of the bill. The motion is that clause 2 as amended do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the clause 2 as amended do stand part of the bill. Now clause 3. Sir, I move that clause 3 do stand part of the bill. The motion is that clause 3 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and clause 3 do stand part of the bill. Now clause 4. Sir, I move that clause 4 do stand part of the bill. The motion is that clause 4 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the clause 4 do stand part of the bill. Now clause 5. Sir, I move the following amendments in clause 5 of the bill. 1. Subclause J be deleted and thereafter the rest of the subclauses be renumbered accordingly. 2. In a renumbered clause Q at the end, the word shall be substituted be added. In subclause 14B3, the words pet care service be deleted. In subclause 18(1), the figures and words pet care service 15% be deleted. Now I put the amendments to the House. Those who are for the amendments may say ayes. And those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the amendments are carried. Sir, I move that clause 5 as amended do stand part of the bill. The motion is that clause 5 as amended do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, and clause 5 as amended do stand part of the bill. Clause 6. Sir, I move that clause 6 do stand part of the bill. The motion is that clause 6 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and clause 6 do stand part of the bill. Now clause 1. Sir, I move that clause 1 do stand part of the bill. The motion is that clause 1 do stand part of the bill. Those who are for the motions may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the clause 1 do stand part of the bill. Now preamble. Honorable Chief Minister may please make the motion in respect of Sir, preamble. I move that the preamble do stand part of the bill. The motion is that preamble do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and preamble do stand part of the bill. Title of the bill. Sir, I move that the title of the bill do stand part of the bill. The motion is that title of the bill do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the title of the bill do stand part of the bill. Now the third reading. Sir, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, and the bill is passed into law. Congratulations, sir. Congratulations. Mubarak ho. अरे उड़ाऊंगा नहीं उड़ाऊंगा सीएम साहब आपको मुबारक हो। बजट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पास हुआ, लेकिन हमारे अपोजिशन ने, वो हम सिंधी में कहते हैं, एक मुहावरा है, तो ट्रेपर ये तो रोज़ो न बन बो सजो बजट सुठो गुजारे आखिर में अलाए छा थी वञे। सर, इसमें इनका कसूर नहीं है, बिल्कुल कसूर नहीं है। इनको कोई और चीज़ मिली नहीं थी आखिर में।
और हमने तो कहा था, आपने बड़ी 14 दिन दिए गए थे अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए। अगर अपना काम करना था तो ये अमेंडमेंट्स मूव करते, उस पर ज़ेर असल बहस होती, हो सकता है किसी चीज़ पे इस हाउस को कन्विंस कर सकते, लेकिन शोर शराबे से और अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाया जाए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। सर, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद देता हूँ, असेंबली मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ कि 2024-25 का बजट और फाइनेंस बिल आज पास हुआ है। और मैं सारी तकारीफ कर चुका था, सिर्फ आखिर में इसलिए कि मुझे पता है कि जो आपके स्टाफ के मेंबरान होते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, असेंबली स्टाफ हो, लॉ डिपार्टमेंट हो, लॉ मिनिस्टर है नहीं, वो उनकी नहीं कर रहे सिफारिश, लेकिन उन सबको जो हम नॉर्मल दिया करते हैं बोनसेस हर बजट में, उनको हम इस साल भी रिपीट करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर असेंबली की इजाज़त होगी तो उस बढ़ा नहीं रहे, लेकिन जो पहले उनको हमेशा मिलता है उसको हम रिपीट कर लेंगे इस साल भी। और असेंबली का जो सारा स्टाफ है ना, इसलिए कि परेशानी हो जाती है, वो फाइनेंस वाले बैठे, खैर मैं उन्हें बता दूंगा। ये पता नहीं कहाँ गया आपका पर्चा, नहीं पता नहीं कहाँ गया, खैर बहुत शुक्रिया।